गुस्से में हूँ। मुझे अभी अभी पैनिक अटैक हुआ था। मैं यहाँ स्टक हो गई दुबई एयरपोर्ट पे। सो क्या हुआ कि माई फ्लाइट वॉज डिलेड फ्रॉम मैनचेस्टर to Dubai. Via Dubai, obviously, I was going Mauritius, and the delay was because they lost a luggage and they couldn't find a luggage, so they located it. By the time we got here, the next flight left. Fair enough, they threw next ticket for next day and said, "Oh, you can have a hotel and you can have a और आपको जो है वो food and transport, everything included for you to get there and come back, blah blah blah." Okay, fair enough. Didn't say anything. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है, हो गया, खैर है. Obviously they were like, "Oh, you require visa." So we came to Dubai Connect for the visa. मुझे यहाँ बैठे हुए 4.5 घंटे हो गए और उनका टाइम स्केल ऑनलाइन भी लिखा हुआ है 1 से 3 घंटा, यानी कि 1 to 3 hours. Now I've been sat here for 4 hours, 4 bloody hours. After 1.5 hours, one of their staff member, उनका एक स्टाफ मेंबर आके मुझे बोलता है आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, हमें वो चाहिए. Like I had no intention of getting out of the airport. Yeah, but उसके बाद अलावा हम आपको नहीं, तो I had to message my family members because obviously can't do WhatsApp call from Dubai, and then panicking got them to send me the ID, gave them that as well, and I'm still sat here. Every time you go and ask for an update, they don't give you accurate answer. आपको कोई सही जवाब नहीं देते. आप उनसे पूछो और फिर वो अरबिक में एक दूसरे से बात करके हंसते हैं और आपको बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लगा मुझे एमिरेट्स का. और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि एमिरेट्स तो कहते हैं कि वो दुनिया की बहुत अच्छी कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की एयरलाइन है, पर एक्सपीरियंस मेरा बहुत बुरा था क्योंकि एयरलाइन जो मैनचेस्टर से भी ली डिले हुई, सब कुछ. इन्होंने ना कोई स्नैक्स ऑफ़र किया ना कुछ, और खाना दिया 2 बजे सुबह उन्होंने खाना सर्व किया है. ऑब्वियसली मैं जब ट्रैवल करती हूँ मैं एक मील एक दिन का खाती हूँ, तो मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था. I had nothing, I had no food at all whole day, so I was hoping to get food as soon as I get on a plane. No snacks, nothing to comfort. 2 AM मुझे खाना सर्व हुआ था क्योंकि मैं बैठी थी के रो में, which is all the way back. Again, very disappointing. Part of ticket you're meant to have breakfast and lunch. I mean dinner and breakfast. मतलब रात का खाना और breakfast. तो obviously जब 2 बजे सुबह खाना खिलाएंगे, breakfast के खाक खिलाएंगे. वहाँ से उतरे, डिले था वो फ्लाइट, उन्होंने मुँह पे टिकट मार दिए. हम यहाँ आ गए, अब 4 घंटे से बैठे हैं, ना किसी ने खाने को पूछा ना पीने को पूछा. और जो टिकट और वो वॉचेस मुंह पे मारे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो यूज़ तभी होंगे ना जब यहाँ से निकलेगा बंदा. सो आई एंडेड अप हैविंग अ वेरी बैड पैनिक अटैक. मैंने वो बोलने के लिए गई तो अगेन वो हंस रहे थे जब मैंने उनको ये बोला दैट look, I suffer from EUPD and I feel like I'm about to have a panic attack. Oh, well, we can't do anything. The visa's gonna come when they're gonna come. I'm like, okay. But I'm telling you who's gonna look after me if I end up with a panic attack. Do you want us to call a medical team? Well, it's up to you. Medical team में खातून थी, एक साहब थे, साहब सही थे, खातून हंस रही थी. Again, वो मुझे धमकी दे रही. She was basically threatening me, or if I don't stop having this anxiety attack, whatever, God knows, I guess people don't know what EUPD is or what panic attacks and anxiety attacks are, then I'm gonna be not allowed to travel and this and that, like basically giving me shut up call kind of thing. और वो again same चीज़. और जो साहब थे वो तो फिर भी ठीक थे बेचारे, वो मेरा ब्लड प्रेशर हुआ, उन्होंने हाँ he tried helping me with the breathing and everything.
And then she was keep on chapping about it, and I said, you know what, this is funny when people laugh at people for what they're going through. I didn't choose to be here. I didn't choose to go outside Dubai. This is a situation that's been created by an airline that represents Dubai. She said she apologized for laughing, and the staff is still, I don't even know. I'm very, very disappointed. And if anybody from Emirates is hearing, I'm sorry. I'm disappointed. I'm disappointed to the level that there's no care for a human being. Yes, I'm not traveling business class or first class because I don't have that money. And yes, I'm not rich. Yes, I don't come from a country में गोरों की country से नहीं आती ना. You know, the country that you guys love people of or whatever. I don't come from a rich country, and for that reason I believe it's okay to treat me that way, the way you guys have treated me or anyone, any fellow people who are in the same state as me. I get it, it's a busy airport, but sorry, take accountability of your actions. You have so many people working here. Teach your staff how to treat people. I don't even know what to say at this point. I'm very, very disappointed. I'm hurt. That's all I'm gonna say. And Dubai claims to be very good, very moral, Islamic. याद रखिएगा, there's saying that our Prophet have said in the end was, nobody is better than no one. Everybody's equal. And unfortunately, you guys have failed to treat people equally. You treat people on basis of money, status, countries. That's what it is. So that's a fact and that's a reality. Finally got the room after eating because they didn't have the room ready. So I'm gonna give you a little tour. I have to get out 4 in the morning, and we'll catch my next flight tomorrow. Food was okay, but here's a room. So on the right you have toilet, and I don't know if the cleaning is not इतनी ज़्यादा सफाई मुझे नहीं लग रही है. वैसे देखने में फ़र्स्ट व्यू में साफ़ लग रहा है, बट थोड़ा है. टॉयलेट मुझे सही लग रहा है मेरे हिसाब से, बट टब जो है मेरा इतना नहीं है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता. सो मेरे को एंग्जाइटी होती है इससे. टब तो नहीं मुझे तब कोई खास शौक. फिर हमारे पास यहाँ पे वार्डरोब आती है जो शायद नहीं यूज़ होगी, क्योंकि मैं लिटरली यहाँ पे के अपना एक नाइट के लिए हूँ और मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं हैं. जो पहना है बस वही है. बट अच्छा है, जगह अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है. अगर आप यहाँ ज़्यादा देर के लिए रहे होगे तो सही है. ये आपको दिया उन्होंने. 2 ग्लासेस हैं, पानी है, ये हो गया. फिर एक और मिरर हो गया. फिर हम अंदर आ गए. यहाँ पे अपना सूटकेस रखने का बेंच है. मेरा वैसे यहाँ है, बट उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे निकालना पड़े. आपके 2 सिंगल बेड हैं और टीवी भी है और सोफ़ा वगैरह है. डिसेंट रूम है, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है. हेयर ड्रायर है और एक और मिरर है. एंड वाह, यहाँ से आपको व्यू मिलता है.
विंडो से। आई डोंट नो ये स्विमिंग पूल इधर बिलोंग करता है या कहीं और बिलोंग करता है, मुझे नहीं पता, बट सही है रूम, मुझे तो अच्छा लगा, डिसेंट रूम है, क्लीनिश है, ज़्यादा क्लीन नहीं है बट क्लीनिश है। आई थिंक एसी है, कैन फील नो जस्ट मी, बट ठीक है। तो मेरा इरादा ये है कि पहले मैं जाऊंगी सुपरमार्केट, कुछ चीज़ें लूँगी खाने पीने की जो अपने साथ लेके जाऊंगी मैं, जो हलाल स्नैक्स होते हैं जो एयरपोर्ट पे थोड़े महंगे पड़ेंगे या ना मिले, और बाकी फिर हम आके शावर लेंगे, रिलैक्स करेंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई कपड़े नहीं हैं। शावर लेने के बाद हम टॉवल में पहन के सो जाएंगे, और फिर सुबह उठ के जल्दी उठना होगा, खाना खाएंगे रात को, और फिर खाना खाएंगे क्योंकि पैसा वसूल करना है, समझ आई, कि पैसा वसूल करना है, और वो जो स्ट्रेस है वो भी वसूल करना है। अभी मैं अपनी फैमिली को मैसेज करूं क्योंकि व्हाट्सएप कॉल यहाँ काम नहीं करती है, वो लोग परेशान हो रहे होंगे, और फिर हम सुपरमार्केट जाएंगे। मुझे यहाँ पे काम करने वाली लड़की ने बताया कि बाहर निकलते ही है, रोड क्रॉस करते ही तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एरिया। बुर्ज खलीफा बहुत दूर है, मैं ये रिस्क नहीं लूँगी, स्पेशली क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और मैं नहीं लूँगी वाईफाई। दूसरे पैसेंजर्स को मिला भी है फ्री वाईफाई के कार्ड वगैरह, सिम वगैरह, बट मुझे नहीं मिला, और मैं बॉदर्ड भी नहीं हूँ। होटल का अपना है वाईफाई जो चल जाएगा, तो ये है चक्कर। फ्रेशन अप होना है, बाथरूम जाना है, सुसु नहीं की है क्योंकि हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करते, तो हमें सुसु करना ज़रूरी है, तो हम वो करेंगे पहले, फिर हम बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने जाएंगे। पहले मैंने सोचा था मॉल जाऊं, यहाँ पे मॉल 12 बजे रात तक खुला है, बट देन अगेन मेरे पास क्योंकि वाईफाई नहीं है वो रिस्क नहीं लेना चाहती, और रही बात दुबई घूमने आने की स्पेसिफिकली, वो मैं कुछ मूड में नहीं हूँ फ़िलहाल लाइफ में, मेरे अपने रीजंस हैं। सो राइट नाउ मैं चलिए रिलैक्स करने, और आप अपना काम करें। मेरी स्किन की यार क्या हालत हो रही है यार, मैं कैसे बांधूंगी मॉरिशस, मैंने तो कोई स्किन केयर भी अपनी हैंड कैरी में नहीं रखी यार, रब्बुल आलमीन, मैं तो कार्टून लगूंगी पहुंचने के बाद। सो द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट दिस रूम, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस रूम की, वो है कि इसमें कुरान है। मैं अभी नहीं पढ़ सकती रीजंस की वजह से, बट कितनी चीज़ है ना कि आप आराम से कुरान पढ़ें और फिर उसी के बराबर में बैठे और आप सो जाएं। अमेजिंग। चलो ये पॉइंट जाता है इसको। ये हम दुबई में हैं, ये कोई क्लिनिक है, मैंने कहा थोड़ा वॉक पे निकलते हैं, थोड़ा कोई सुपरमार्केट वगैरह ढूंढते हैं, और कोई मज़े के स्नैक्स ले लेते हैं ले जाने के लिए अपने साथ। अब मौका मिला है तो कुछ हलाल स्नैक्स ही ले लेंगे। सो होटल के जो हॉलवे है ना, उसमें से ना बड़ी गंदी किस्म की बदबू आ रही है, तो अच्छा उन्होंने, हम जब अंदर घुसे थे तो उन्होंने एक परफ्यूम जो था वो स्मेल करने के लिए हमें एक पेपर पे लगा के दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा नाक को सुकून दे देते हैं वहाँ वॉक करते जाते हुए। तो अब ये है कि अल्लाह भला करे। तो रूम में कहीं चार्जिंग पोर्ट नहीं दिखा हमें, तो हम जो हैं रिसेप्शन में गए भी पता करने कि भैया कहाँ लगाए हम केबल, फ़ोन कैसे चार्ज करेंगे, तो उन्होंने कहा टीवी के पीछे है जगह। तो अभी तो खैर हम बाहर निकल आए, जब वापस जाएंगे तो देखेंगे टीवी के पीछे कोई जगह है या नहीं है। आई थिंक वो है सुपरमार्केट जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, शायद वो है। तो अब ये है कि हम वहाँ जाते हैं और
देखते हैं कि क्या क्या मिलता है, मस्ती करेंगे थोड़ी सी। ज़्यादा दूर नहीं है, लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे। मुझे ये नहीं पता यहाँ का वॉकिंग क्रॉसिंग सिस्टम कैसे काम करता है रोड का, मतलब ऐसे ही क्रॉस कर लो या कोई क्रॉसिंग है, कि मैं रूल नहीं ब्रेक करना चाह रही कोई, तो यहाँ लग नहीं रहा कि कोई क्रॉसिंग सिस्टम है, मतलब दिख नहीं रहा कुछ। मतलब ये तो है जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, मुझे शॉप पे जाने की नहीं दिख रही हुई। मैंने देखा 2 लोग ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसे ही शायद क्रॉस करना पड़े। चल अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्नैक है भाई, बहुत सारे स्नैक्स। मुझे जो चाहिए ले लो। कितने सारे क्रिप्स हैं भाई, चिप्स क्रिप्स whatever you call it। ये हैं जो मुझे पसंद है, शायद मैं थोड़े और अलग से लूँ जो हम ट्राई करें। We'll make a video, I'll grab snacks and then we can try them। I'll make a video of it। It's a nice supermarket, small one, I believe they're bigger than this, for like noodles as well, sauces. They're like, you can get these noodles in UK as well. You got Nando sauce, all of that. All these ketchups and different snacks. I think I dropped something. Oh, the ice cream. But my throat is not good, so I can't try them. But look at this mango one. Oh, the mango one looks good. You know what? I do want to try this. I've seen it in so many people's pages. You know what? I'll make an exception. I know I'm not well, but I am gonna try that. There's no way I'm not gonna try that. It is what it is. Okay. And then there's a whole vegetable fruit section there, and all of this is crisp. So let me pick some up and then I'll show you what I got. Cured. Whee. Crossing road was definitely the hardest thing. Looks like in a school. Oh my god, the crossing road. It's not that bad, but what I've noticed is मैंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे जो ना सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या स्पोर्ट्स कार है। मुझे नहीं पता स्पीड लिमिट क्या है, बट गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ आ रही होती हैं। अभी जैसे रोड है इतना भरा हुआ नहीं है, मतलब इतनी गाड़ियाँ नहीं है, मगर जब मैं क्रॉस करके जा रही थी तो फल्ला इतनी गाड़ियाँ थी, सब तेज़ आ रही थी। तो क्रॉसिंग कोई थी नहीं स्पेसिफिक, सो जैसे भी था वैसे ही निकल गए। अभी हमारे कदम जा रहे हैं हमारे होटल के वापस। स्नैक्स हमने ले लिए हैं, जो हम होप करेंगे कि इमिग्रेशन में सुकून से निकल जाएं, कोई मसला ना हो। मैं अपने साथ ऐसा क्यों करती हूँ, ऑलरेडी इतना सामान है और सामान भर रही हूँ, मसला क्या है मेरा, क्या मसला मेरा। So it does not smell good. It smells so bad. Smell like damp clothes that have been left for too long without
trying. Anyways, back in our room. They really seriously need to do something about secure ourselves. I had very bad experiences in life when it comes to locking the door. Oh god. I am gonna take my shoes off because I don't know, should I do the haul now or should I do it when I'm just gonna grab some water when I'm trying the snacks? I don't know, I'm confused. Should I do it now in case if they don't let me take it with me, or should I do it, god, or should I do it, you know, once I'm ready to try? Well, I know one thing that I'm ready to try is this ice cream, even though my throat is gone. And but how dare I not? Seen it everywhere. It was viral, wasn't it? Where is it made in? It's made in somewhere, isn't it? Probably made in some country. It is halal. Made in China. Would it not melt coming from China? I'm just saying it. Oh, the packaging is good. What do I do? Just push it up? Oh god. I guess. Just push it up, I guess. It's not. Okay, I'm not gonna act like that. I'm just gonna open it. Oops. Ooh, that looks nice. Oh, it's got like a. Then you can just push the stick, I believe. No? Why is such a complicated thing? Okay. Oh god. Here we go. That's how it looks. I like the color. It's got like a peachy, orangey, whitey. Okay, should we try it? It doesn't even smell like mango. Hey. It smells like something else. Like, it's a very rosy smell. Just mango, and our bit is like a chocolate, very powdery. I think the color is a bit powdery, so it doesn't taste proper white chocolate. It's not too sweet, you know, and the ice cream itself. Let me take a picture first. The mango, I can taste the flavoring of mango. Well, not like mango. I have better ice cream, especially this, you know, this color bit. I feel like it's a powder color or something that's not pleasant to mouth. So I have no idea how people made it viral and went so viral and so famous. This is just not getting it. The color bit is just not nice. It's just not a nice texture to have. In a bit, yeah, there is a mango taste, but it's not strong enough. That's just my honest review, because I don't take money to try these things because nobody wants to pay me. But that's just my opinion.
Rest of the snacks, got loads. We gonna do a haul when I try, basically. I should leave it for then. Guys, not eating, so there was not much option. I have no idea what this is. This is pasta, pink sauce pasta. No idea what it is on the top of my rice. I've got some curd chai because the AC is so cold in the room. And I've been coughing, and I've got water mixed with warm and cold. There's meat inside, but the korma, whatever it is, the gravy, because I didn't know what it was. I just didn't want to risk eating that. It's alright. I don't know what that is, but it's alright. Very spicy though. I'm eating it right now. Oh, I have to get up 3 in the morning to catch the shuttle for my flight, which means we'll have no food. And the experience I have with Emirates, I'm doubting I'll get any food anytime soon once I have to start in the plane. So that's why I need to eat this right now. So it's what is it the time? I think it's 20 past 3. What time is it? 3:30 हो गए. तो 15 मिनट में मुझे नीचे पहुंचना है. तो मैंने कहा फेस वॉश नहीं है, कोई मॉइस्चराइज़र नहीं था हैंड बैग में, क्योंकि मुझे था कि मैं पहुंच ही जाऊंगी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मगर मेरे पास सनस्क्रीन था तो मैंने लगा लिया, थोप लिया. मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत इंसान बन के यहीं से जाऊंगी, आगे क्या होना है पता नहीं है. सो बहुत ही हल्का सा मैं अपने हिसाब का मेकअप कर लूँगी. नींद सही थी, ऊंची नीची थी, बट सही सो ली मैं. बेसिक आई शैडो लगा रही हूँ, बिल्कुल रिस्की एक नाम है इस आई शैडो का, और मैं यही लगा रही हूँ. उसको मैं अच्छे से कर दूँगी कि लगा भी है और नहीं भी लगा. ये फीलिंग होती मेरी कि लगा भी और नहीं भी लगा. रात को ठंड बहुत हुई थी. गलती मेरी है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको स्विच ऑफ भी कर सकती हूँ. मैं बार बार उसका टेम्परेचर ही वो कर रही थी, तो उसमें स्विच ऑफ का ऑप्शन भी था. बट कभी कभी क्या है ना, आपका ब्रेन काम नहीं करता, और मेरा तो कभी कभी से ज़्यादा नहीं काम करता. मैं कोई मस्कारा नहीं लगाने वाली, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर वो मैसी हो जाएगा. तो हल्का सा आईलाइनर लगा लूँगी. वैसे मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, बेस वेस नहीं लगाती. मैंने फाउंडेशन अपनी ज़िंदगी में शायद 4 बार लगाया, 5 बार लगाया, उसके अलावा नहीं लगाया, क्योंकि फाउंडेशन में नहीं लगाती. मेकअप में भी ये नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ. बेसिक चीज़ें होती हैं, वही सेम चीज़ें, वही सेम कलर है. मतलब समझ लो कि मैं गलत एरा में पैदा हुई हूँ. अगर मैं अपने मुताबिक के एरा में पैदा होती तो ये सब चल जाता मेरे को एक लिपस्टिक से ना आई शेडो, ब्लश ऑन और लिपस्टिक लगाने का भी मसला नहीं है. मैं कर चुकी हूँ. जो अभी आया है ना पिगमेंट के नाम पे लगाने का, और वो कोई पिगमेंट वगैरह नहीं है, वो लिपस्टिक ही है जो लगाने वाली.
अपन से पूछो। विच आई नो कि निकल जाएगी। लिपस्टिक वहाँ जाके टॉप कर लूँगी। फिलहाल नहीं है। मस्कारा वगैरह मैं नहीं लगा रही क्योंकि मस्कारा में ऐसे हो जाता ना, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ जाते ही, क्योंकि संडे के दिन मॉरिशस में ज़्यादा चीज़ें बंद होती हैं और जिसका मतलब है जब तक मैं पहुँचूँगी वैसे ही लेट हुआ होगा तो बिल्कुल ही लाइक हिसाब ये कि कुछ भी नहीं खुला होगा। मुझे लगता है खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा। सो उस वजह से ऐसा कुछ मेकअप नहीं करूँगी जिससे मेरी मुश्किल हो, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो आई डोंट थिंक सो मैं मेकअप वाइप भी लेके आई हूँ। मेकअप करती नहीं हूँ ना इतना, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मर जाऊँ। ठीक है, च्युइंगम मैं यहाँ से निकाल लूँ, मुझे नहीं पता ये च्युइंगम इसके अंदर क्यों पड़ी है। और थोड़ा सा परफ्यूम है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ पैराडाइज है नेक्स का, छोटी शीशी थी, स्मेल्स अमेजिंग। मैं घर से निकलने से पहले तो उस पर गुची ब्लैक लगाया था, ऑब्वियसली अब तो ये पैराडाइज की स्मेल सो अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस नहीं से पिछले 5 घंटे से ये फ़ोन चार्ज पे पड़ा है और इसकी चार्जिंग हुई है 35 से आ गई है 75 पे। अचीवमेंट। चलो ये हो गया हमारा लुक। मेरे को नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे भाई ने मेरे को बोला लाते हुए कि तुम गरीबों की अरब लग रही हो। अब मैं गरीबों की अरब लग रही हूँ नहीं लग रही है मैं नहीं जानती, पर मैं बहुत थक गई हूँ। अभी ये चार्जिंग जो मैंने टीवी के अंदर लगाई है ठोकी है, और ये मतलब इतनी चार्ज किया, चलो कुछ भी है, अंदर में खाना रह जाए वो हम निकालेंगे। जो हमने सेब उठाया था कल डिनर से वो हम बैग में डालेंगे इन केस। हम शेड डालेंगे, हमारा सारा पेपर वर्क सब रेडी है बेसिकली। बस दुआ करें कि सूटकेस भी खैर खैरियत से वहाँ भी पहुँच जाए, घर तक जहाँ पे स्टे है वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वो वाकई बहुत भरा हुआ है। सो होपफुली कोई खोलने को ना बोले, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई खोलने को नहीं बोले, मतलब कोई खोलने को ना बोले, क्योंकि वो बंद करना मुश्किल होगी फिर से। और जो मैंने स्नैक्स लिए हैं उनका बैग है, सो आई होप एवरीथिंग गोज़ स्मूथली यहाँ से। फ़िलहाल तो मेरा एक्सपीरियंस दुबई एयरपोर्ट का इतना ख़ास नहीं रहा, सो गिव्स मी आइक्स। कस्टमर सर्विस स्पेशली इतनी अच्छी है, इतनी आला है कस्टमर सर्विस कि मेरा दिल चाह रहा था हक थू। बहुत बोल दिया। चलो भाई अब हम अपनी रवानगी करते हैं मॉरिशस तक। आई होप हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं। टू मच ड्रामा, टू मच ड्रामा, टू मच ड्रामा। So however, the walk was huge. I think it took me about 45 minutes to even get to here from security. Got myself some cardamom chai from the vending machine and filled my bottle because I am paying £3 for a water bottle. Bottle of water. Anyways, जो भी है। So हमने थोड़ी इलायची वाली चाय ले ली। हमें यहाँ पहुँचने में 45 मिनट्स लग गए। 3 बजे उड़ गई थी जैसे आपको पता है, तो मेकअप चेकअप किया और आउट ऑफ हैबिट मैंने यूँ कर दिया। अब मैं थोड़ी सी जिन बटूटा लग रही हूँ। और आपको जैसे मालूम है कि मुझे PCOS है। मैंने सोचा था बड़े प्यार से तैयार हुई थी, फेशियल कराया था, सब कुछ करा के आई थी। सोचा था कि मैं बड़ी प्यारी लगूंगी जब मैं मॉरिशस पहुंचूंगी, मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी, मैं इतनी प्यारी लगूंगी। मुझे PCOS है, मैंने दाढ़ी शाड़ी सब बनाई हुई थी, मगर क्योंकि ये एक दिन के डिले ने ये किया,
देखो अब मैं दाढ़ी मूछों के साथ पहुंचूंगी मॉरिशस। क्या इज्जत रहेगी मेरी, क्या मोहब्बत मिलेगी मुझे, क्या इज्जत मिलेगी मुझे, बताओ। अब मैं ये चाय ख़त्म करूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी और इंतज़ार प्लेन का, और होप करूँगी कि वो मुझे अपडेट कर दे बिजनेस क्लास में। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम वापस आ गए हैं यूके की ठंड में, पर आज सूरज निकला हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। मैं इस टाइम जॉब पे हूँ, पर वीडियो बनाना थी उसकी जो मैंने दुबई में चीज़ें ली थी स्नैक्स की, टू कंप्लीट द होल वीडियो, क्योंकि मैंने कहा कि अगर नहीं दिखाऊंगी तो वीडियो कैसे कंप्लीट होगा और ये एपिसोड कैसे अपलोड होगा। तो भाई हमारे पास है, बेचारे की गद बन रही है क्योंकि ये मेरे साथ 2 हफ्ते मॉरिशस में रहा, फिर मॉरिशस के बाद बेचारा यहाँ पे धक्के खाता रहा। मुझे आए हुए 1 हफ़्ता होने वाला है, कल 1 हफ़्ता हो जाएगा। तो ये रहा हमारा बैग, ये वही बैग है। हम ट्राई करेंगे स्नैक्स और देखते हैं कौन चीज़ कैसी है। अरे यार मेरा हेयर ब्रश और परफ्यूम इधर से मिल गया। मैंने कहा मेरा हेयर ब्रश और परफ्यूम कहाँ गया, इतने कुड़ियाँ। सो फायदे अस्सलाम वालेकुम, आपको पूरी आदत है। तो हमारे पास पहला जो है वो है आई थिंक लेज बेबी टमाटो केचप। हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। यार सूरज ना बिल्कुल सामने आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको लगाने का। भाई देखो भाई कहाँ है कैमरा। ठंडे हुए हैं, गाड़ी में पड़े थे। सही है, खास नहीं है वो केचप का वाला टेस्ट नहीं आ रहा। मैं जब अमेरिका में रहती थी तो वहाँ पे ना केचप फ्लेवर के वो मिलते थे, हर्स केचप चिप्स मिलते थे, बड़े मज़े के होते थे। सो ये हमारे पास आ गया मैक्स, और ये है शिकागो हॉट विंग्स। आपको चुड़ैल कोई देख लेगा ना, बोलेगा ये क्या कर रही है चुड़ैल। They're not hot. They're not hot. Just plain. They're not salt. They have this taste, but it's not wings. Not hot. Anyways, इसको मैं दूंगी, ये वाला बिल्कुल भी टेस्टलेस था थोड़ा सा, और उसकी क्वालिटी भी मुझे इतनी खास नहीं लगी, तो मैं उसको दूंगी अराउंड अबाउट 10 में से दूंगी मैं 4। और ये वाला है, इसका टेस्ट तो है, कुछ तो है, बट क्या है वो मुझे नहीं समझ आ रहा, कि हॉट विंग्स तो नहीं है, केक विक कुछ भी नहीं फील हुआ। तो इसको मैं दूंगी, अगर टेस्ट सही है मैं खा सकता बंदा, तो इसको मैं दूंगी अराउंड अबाउट 6। फिर हमारे पास स्नैक्स आ गया। यार ये मैं थोड़ा लुक फॉरवर्ड कर रही थी, अगेन लेस है, और ये है मैंगो हॉट स्पाइस। मैंगो में वैसे ही पसंद है, और इसको भी खोल रही हूँ। ये सारे खोल रही हूँ, सब ख़राब हो जाएंगे कि मैंने खाए नहीं कुछ दिनों में। तो ये मैं अपने घर वालों को बुला बुला के ख़त्म करा दूँगी धोने में। ये अच्छे हैं, ये अच्छा है, ये एक्चुअली अच्छा है। सूरज आग मचोली खेल रहा है। अच्छा ये अच्छा है, ये मैं घर वालों को नहीं दूंगी।
ये ना इनका टेस्ट है ना किसी चीज़ से मिलता है जो मैंने खाई है। बस इसको मैं देंगे 8 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, सही है क्योंकि अच्छा है, मज़े का। ये आ गया हमारे पास चीटोस फ्लेम एंड हॉट लाइम फ्लेवर के। मैंने कभी नहीं खाया पहले, हलाल नहीं मिलते कहीं पे भी, तो ये हलाल हैं। तो very strong taste of lime instead of chili. Like lime और chili का बैलेंस नहीं है। ये काफ़ी अच्छा है और दोबारा ले सकती हूँ मैं, ऐसा है। इसको मैं लूँगी 9, ये अच्छा है। जल्दी नहीं करेंगे, मेरे ब्रेक खत्म होने वाला है। हमारे पास चीटोस फ्लेम एंड हॉट, ये अमेरिका में खाती थी, जो मुझे बाद में आके पता चला हराम है, अगर ये हमें हलाल मिल गए। These are actually nice. पानी लेके आई हूँ क्या? ये अच्छा 9.5 out of 10। मैंने कहा पानी पी लूँ तो ये हमारे अलग से अच्छे से गुजरेगा है भाई, वरना मेरे अलग में अटक जाएगा। ओके, अब हमने सारा नमकीन चीज़ें कर लिया, अब मीठे पे आ रहे हैं। मीठे सबसे पहले हमारे पास है, मैंने जो लिया वो था कैंपेन फायर मार्शमेलोज। ये मैं नहीं खोल रही, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये मुझे वाकई कैंपेन की यूज़ करनी है, अच्छी ही होगी, नॉर्मल है, ग्लूटेन फ्री है। हमें ग्लूटेन एलर्जी है बट हम ग्लूटेन खाते हैं क्योंकि हम खप्पू हैं यार, हमारा काम ही खाना है, खाएंगे तो करेंगे क्या ज़िंदगी में, और करने को है ही क्या, और है ही क्या हमारे पास करने को। और ये आ गया हमारे पास लॉकर गार्डेना हेज़लनट। अगर मैं प्रोनाउंस सही भी ना करूँ ना तो खुद ही सही कर लेना, जब तक बनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ट्राई करेंगे। आई थिंक इज़ लाइक अ वेफर, और हमें पसंद है भाई ऐसी चीज़ें। यार मुझे नहीं पता, इनका टेस्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ठंड में आके, या वाकई चीज़ों का टेस्ट इतना मस्त नहीं है। ओह गॉड, बैट और बड़ा हो गया। देख लो भाई, अच्छी खासी लिया है। अच्छा है भाई, ये मस्त है, ठंडा ठंडा है बट मस्त है, ठंडा है बट मस्त है। ओके, समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट ट्राई क्या करूँ। ये ना उसमें गाड़ी में छोड़ दूँ और साइज में और ख़राब हो जाए खुलने के बाद। M&M's पीनट्स, यहाँ यूके में ये हराम होते हैं, अगर आप खा रहे हैं तो साले हराम क्यों खा रहे हो हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें। M&M's खाए हुए मुझे सालों हो गए कि अगेन यहाँ पे हराम होती है। नहीं हराम नहीं हुआ, मैं M&M खाए थे जब मैं इस्तांबुल गई थी। स्टैंडर्ड M&M टेस्ट है, मतलब चॉकलेट का टेस्ट बहुत डिफरेंट है एक्चुअली। चॉकलेट क्वालिटी थोड़ी बेटर है यहाँ, जो मुझे लगी है, ये बेटर क्वालिटी चॉकलेट है। जो अमेरिकन M&M होती है वो भी आप खा सकते हैं खाने को, जो कोशर होती है। अमेरिका की जो चॉकलेट्स का क्वालिटी है ना, अल्लाह माफ़ करे, खुदा की कसम, वहाँ के लोग खा क्या रहे हैं, जो खा रहे हैं वही बक रहे हैं। ये M&M नॉर्मल स्टैंडर्ड, अगेन चॉकलेट की क्वालिटी अच्छी है,
कंपैरिजन। मैंने यहाँ की हराम वाली भी खाई थी शीशु में, पता नहीं था हराम है। इवन उसके मुकाबले में अब ये मत कहना कैसे खा ली, हलक से निकाल दो। वो भाई 20 साल पहले खाई थी। हलक तो क्या अब गटर में भी नहीं मिलेगी। M&M क्रिस्पी जो मेरी फेवरेट होती थी, जो मुझे नहीं मिली जब मैं इस्तांबुल गई। सारी M&M अच्छी है, सबकी चॉकलेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनको हम 10 ही देंगे। और आज आ गई स्किटल्स जो है ना यूके में भी वेजिटेरियन है। जो ये मैंने सावर वाली जानबूझ के ली, क्रेजी सावर। जो यूके वाली ना वो सावर नहीं है, अमेरिका वाली प्रॉपर सावर होती थी। अभी देखते हैं इनका क्या हाल है, क्योंकि अमेरिका वाली में ना ऊपर सिट्रिक लगा होता था पाउडर जैसा, जिसमें सिट्रिक नहीं लगा हुआ। तो मुझे यही है कि यहाँ जैसी होगी है। इसमें सावर नहीं है। हमने रेट किया कर दिया ना है, chew into it, but नहीं है। है यहाँ के मुकाबले में ज़्यादा है। अच्छी है भाई, अच्छी है। हमने पैसा दिया, अच्छी तो है। फिर हमारे पास आ गई मेंटोस च्यू। तो ये ना आप जहाँ से भी ले रहे हो और आप खा रहे हैं अगर कहीं से भी, तो याद रखिएगा हराम खा रहे हो। ये आपको हलाल जो है किसी ऐसी कंट्री में मिलेगी जहाँ हलाल बनता है। ये दुबई की खुद की है, वहाँ से बनी हुई है, तो हलाल ही होगी आई गेस। और इसको ट्राई कर लेंगे क्योंकि हम पुखड़ है नहीं, पेट भर गया ट्राई करने में। कोई मसला नहीं है, ये सब चलता है। अच्छी है यार, ग्रेप का टेस्ट है। ग्रेप है, वही अंगूर है क्या तू? ग्रेप है, ग्रेप टेस्ट की कैंडीज अच्छी होती है वैसे भी। अगेन जो इसमें खासियत है इन सब चीज़ों में, किसी में भी नकली खाने का टेस्ट नहीं आ रहा। मेरे पास टाइम नहीं है और बच्चे के हमारे पास एक चीज़ और, टाइम ख़त्म हो रहा है भाई। हमें फ़िक्स तो नहीं मिली वहाँ, और हमारा बैंक अकाउंट भी कहता अच्छा ही ना मिले, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट बताया बेटा मिल गया ना बेटा, तुम्हारे साथ पूछती उसका डेप्थ पता कर देंगे। फिर हमने ये ले ली जो है चोकोज एंड पिस्ताशो कुनाफा मिल्क चॉकलेट बार। ये साइज है जो मैंने ली। इसके अलावा 2 और बैग थे चीटोस फ्लेमिंग हॉट के, जो मैंने ऑलरेडी दे दिए। ये सब मिला के मुझे पड़ा 25 पाउंड आई गेस, सही है। हम इसको ट्राई करेंगे। कौन है? सबके सब इधर ही आप घूमने आ गए पार्क में, हैं घर नहीं है लोग पास। डकारें आ रही हैं यार। ये देखो भाई, लुक अच्छा है। चॉकलेट क्वालिटी मेरे ख्याल से बिग डिफरेंस करेगी, वरना यहाँ पे तो भैया जो वाट लगी थी, हर दूसरा बंदा कुनाफा चॉकलेट ऐसे बड़े बड़े प्राइस में, जैसे उनके चचा की दुकान हो, उनकी खुद की भी। मैं कर देती हूँ, मैं नहीं करूँगी, मैं कर देती हूँ, फिर बताऊँगी। कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कैमरा ही मिस कर दिया। क्या चीज़ हूँ मैं? ये लो भाई, एक और बार देख लो। ओके, अब हम ट्राई कर लेते हैं। देखो दिख भी रही है। मैं कभी भी कुनाफा चॉकलेट की इतनी बड़ी फ़ैन रही नहीं हूँ,
और हाई वाई था। इसके बाद एक छोटी और ली थी, मेरी भाभी को दी है। मुझे लगता है उस में मैं हूँ कि चॉकलेट को ज़्यादा हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। मुझे मीठा पसंद नहीं आता। ठीक है, मतलब वो नहीं है वाह वो वाली शक्कर नहीं है, तो ठीक है। काफ़ी महंगी भी देती है। मेरा बिल खो गया, मैं बता दे रही, बिल खो गया है। खो गया। और ब्रोसो धर्म की थी ये शायद वो नहीं है। ऐसे बोलेंगे बहुत अच्छी है, हाय अल्लाह, क्या मत नहीं है। एनीवेज, इसको मैं अगर दूंगी 10 में से 7 दे सकती हूँ। ये 7 होगा सही, वैलिड। खैर एनीवेज, अगर हम अब पॉइंट पे आते हैं तो पॉइंट ये है कि हम फंस गए दुबई में। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, हम गरीब थे तो हम ज़्यादा दूर जा नहीं सकते थे। यहाँ हमें 25 पाउंड खर्च करने पड़े। अगर हम कहीं और चले जाते तो 200-300 तो दिल्ली चले जाते घूमने फिरने। वक्त इतना था नहीं और खोने का दिल नहीं चाह रहा था कि शहर में खो जाए। तो थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया ना। के पाव चला दिए कम वक्त में। तो हमने वही स्पेंड किया जो हम गरीब लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग सोना चांदी की जगह हम लोग खाने ले लेते हैं। स्नैक ट्राई किए, मेरी फ्रेंड्स फैमिली भी ट्राई करेंगे, उनका भी देखना है कि उनको कैसा लगा। सही था, मज़ा आया। अब आप बस ये मत भूलें कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हैं फॉलो कर लें, वरना मैं बदवा दे दूँगी। खुदा की कसम खा के क्यों मजाक करें, मैं बदवा नहीं देती यार। अल्लाह का खौफ रखती हूँ, इंसान की बच्ची हूँ, बदवा क्यों दूँगी किसी को। अल्लाह के घर मुँह भी दिखाना भी हमें। दिल चाहे तो करिएगा, कुछ अच्छा लगा हो इसके बारे में तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी सिर्फ इससे कि नहीं क्यों हमसे आगे कोई क्यों जाए, वो वाले चक्कर में नहीं कर रहे ना। तो बट एनीवेज, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारा ब्रेक हो गया ओवर और हम जा रहे हैं वापस अंदर। हमने इसको कर दिया है बैग में, सबको सेफ सील। अब ये ख़राब ना हो, बच्चे चीज़ें। अब ये जा रहे हैं बैक ऑफ कार। अब हमें बस याद रहना चाहिए यहाँ से उठाना। आप प्लीज़ ट्यून इन रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जल्द आने वाली हैं मज़ेदार मॉरिशस की वीडियोस, जो मेरे हिसाब से तो बहुत मज़ेदार है। एंड आई होप आपको भी पसंद आए। वो जो कुछ लोग हैं ना, 1-2 लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी जर्नी में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई रियली डू अप्रिशिएट दैट। और जो लोग नहीं कर रहे, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करने वाली। मैं हमेशा करती रहूँगी जो मुझे करना है, किसी को अच्छा लगे ना लगे। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ सेल्फ। आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।